Okay, welcome back guys to another session on activity-based costing. Today we are going to see some theory on activity-based costing. Okay, let's start. What is meant by activity-based costing? Explain benefits of activity-based costing. Okay, so let's read the introduction. Traditionally, so we are talking about traditional absorption costing. We are not talking about activity-based costing. We are talking about traditional absorption costing. Cost accountants had arbitrarily added a broad percentage of expenses into indirect cost. Okay, whatever overheads that we have incurred in the past year, what we will do is we will calculate a rate, and that rate we will just apply to all the departments, which are either production departments, or we will charge it to the product as indirect cost. However, as the percentages of indirect or overhead costs have risen, this technique became increasingly inaccurate. What does this mean? It means that earlier, when the rates were low, means the overheads were reasonable or the indirect cost was reasonable, it was easy to charge these overheads to the production departments. But now the overheads have increased so much that it is unfair to directly charge one rate to all the production departments. So what we will do is we will either calculate overheads to be allocated to specific production department, or we will do activity based costing. Okay. So let's read now. However, as the percentage of indirect cost or overhead cost had risen, okay, this is the reason it has risen. This technique become increasingly inaccurate. Okay, so we are not happy with the traditional absorption costing because the indirect costs were not caused equally by all the products. Okay, were not caused equally by all the products. What does this mean? It means that some service departments are incurring more overheads than expected, some are incurring less overheads, but it is being spread over all the products, okay, which is not correct. So the another reason is not caused equally. Okay, the first reason is that the percentage has risen, and the other reason is that it is not caused equally by all the products. For example, now they are giving an example. One product might take more time in one expensive machine than another product, but since the amount of direct labor and materials might be the same, the additional cost for use of the machine would not be recognized when the same brought on cost percentage is added to all the products. Okay, now let's take an example. Product A, B, and C. So first, material, then labor. This will give us, sorry, then direct expenses, means remaining expenses. This will give us what? Yes, what will we get after we add direct material, direct labor, and direct expenses? We will get direct cost. Okay, we will get direct cost. Then other than direct cost, whatever expenditure that we have incurred, we will just call it as overhead. And then when we add this overhead to the direct cost, we will get total cost. Total cost. And after we add profit to this total cost, we will get, yes, what we will get? Selling price. Yes. Selling price. What we will get? Selling price. Selling price. Now let's just put in some figures. 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1,
1, 1. Okay, what is the direct cost of each product? Is it 7? 7, 7, 7. Now let's assume that if I am producing 5 units of A, 3 units of B, and 2 units of C. Tell me what will be my direct cost? A. Okay, forget it. If I require 1 hour per unit of A, then B and C. सर आवाज नहीं आ रहा आपका, ब्रेक हो रहा Okay. है. So 1 unit is equal to 2 labor hours for A, 3 labor hours for B, and 1 labor hour for C. Okay, what are these? These are labor hours. Okay, I will just write here. These are the labor hours. So tell me what are the total labor hours? Yes, what are the total labor hours? How will you calculate that? See what I said that I have sold 5 units of A, 3 units of B, and 2 units of C. For preparing A, 2 hours are required for 1 unit, then 3 hours for B and 1 hour for C. So what are the total labor hours that were required for production? Is it 5 into 2 plus 3 into 3 plus 1 into 2? Is this correct? Yes, sir. So total labor hours are 21. Okay. Now I will say that total overheads are, what are the total overheads? Total overheads are also 21. Okay. So my overhead rate per labor hour is how much? Yes. If I am apportioning overheads on the basis of labor hours, what is the rate I will calculate? The rate is 1. Okay, what is the rate? 1. Yes or no? Rate is 1. Say yes. Yes. Okay. So I will just apply this rate over here. So how many labor hours there are? Here there are 4. So I will just multiply 4 by 4. Then for B, again it will be 3. And for C, it will be 2. So now tell me what is the total cost? 11, 10, and 9. 9. After this, I will add a profit of 2 rupees everywhere as a uniform rate. 3. So my selling price will be 13, 12, 13. and 12. 11. 11. This is what we used to do in the traditional. Okay, this is traditional costing system. Yes or no? Okay. Yes, sir. So if one product
takes more time in one expensive machine than another product. Okay, which product we are talking about? For producing A, I am taking how many hours? 2 hours. For B, 3 hours, and for C, 1 hour. So tell me which product requires maximum labor hours per unit? B. A, B, or C? B. So B requires more labor time. Okay. So, but if you see the selling price is 12. Even if 12. C requires less labor hours, still its selling price is less. So this is a problem or not? Yes, sir. I will just make one correction here. Instead of 2, what we will write is, we will add 20% of cost. Okay, what is the 20% of 11? I think it is 2.2. Then for 10, it is 2. And for 9, 1.8. Okay, so this will be 12. This will be 10.8. Because I cannot add a uniform profit for even if the cost is low, na? That is why. And this is 13.2. Okay. Now I am spreading overheads on basis of labor hours. Now even if I am or see the labor hours are less, it ended up having a less selling price. So I think that it is inaccurate. So what we will do is, instead of using traditional costing method, we will use activity based costing. Okay, let's read now. But since the amount of direct labor and materials might be the same, is it same everywhere? Is this same? It is not same. No, sir. Okay. But these are same. Why these are same? Because we have apportioned overheads on basis of direct labor. Operation of direct labor. Okay. So the additional cost for the use of machine would not be recognized when same brought on cost percentage is added to all the products. Okay. So if any of these products is requiring more material or more labor hours, it will not be recognized if we are applying one overhead rate to everything. Okay. Like this, so see, we have calculated overhead here. We don't know which where these overheads were used. For example, imagine that these overheads are a coffee machine. It might be the case that the people working on product A, B, or C, some may have used the coffee machine, some may not have used the coffee machine. But what we have done, we have just used labor hours as a basis for spreading the cost of coffee machine. Is that correct? Do you think it is correct? No, So sir. consequently, when multiple products share common cost, there is a danger of one product subsidizing another. Tell me, Another. out of ABC, C is requiring less labor hours, right? And Yes, because sir. of that, less overheads are charged to C. But it might be the case that C is using maximum coffee machine than A or B. But how do we understand that? Okay, so instead of what they are trying to say is, instead of charging a overhead rate like we calculated here, what we will do is we will use activity based costing. Okay, so in this paragraph they are trying to give this example. Okay, have you understood what I'm trying to say? This is the example of traditional costing system. Yes, what is it? It is traditional costing system. costing system. I will just save this. Now let's see what is ABC. Concept of ABC was developed in the manufacturing sector of United States. तो कहाँ का concept ये? United States का concept है. कब आया है? 1970 या 1980. मतलब उनको भी exact date मालूम नहीं कब हुआ, लेकिन उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. During this time, the Consortium for Advanced Management International, उसको CAM-I भी बोलते हैं,
provided a formative role for studying and formalizing the principles that have more formally known as activity based costing. तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स में 1970 में कैम आई जो है, इनके प्रिंसिपल्स पे हमने डेवलप किया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके चलो अभी मीनिंग पढ़ते क्या है। इट इज एन अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ अकाउंटिंग। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल से हमको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वी आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स, हमको लगता है कि वो मेथड इनएक्यूरेट है, इसीलिए हमने एबीसी को निकाला है। ठीक है, इट आइडेंटिफाइज द कॉस्ट पूल्स, एक्टिविटी सेंटर्स, it assigns costs to products and services based on the number of events, transactions that are taking place in the process of providing a product or service. Okay, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो कॉफी मशीन का एग्जांपल लेते हैं। कॉफी मशीन का खर्चा कितना आता है साल में? 15,000। 15,000। ठीक है, वापस एक बार, प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? ए बी बी सी। सी। ठीक है, इसमें लेबर आवर्स कितने थे? इसमें थे 50, 60, 70। ठीक है, उसके बाद कॉफी मशीन के लिए, हाँ, नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हैं? ठीक है, नंबर कितने हैं? ये एक वीक का है, हाँ, एक दिन का नहीं है लेबर आवर्स, एक वीक का है ये, पर वीक है ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पर वीक है ये। नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हैं? यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रेडिशनली क्या करते थे, अभी हम क्या करते थे कि सीधा इसका टोटल ले लो, 50, 60, 70, कितना था टोटल? 180। ठीक है, हम क्या करते थे स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल में, सीधा इसको 180 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 50, 60, 70 से, और उसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे कि ये प्रोडक्ट ए को हम इतना ओवरहेड चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये कब करते थे? ट्रेडिशनल में करते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक और ड्राइवर ढूंढेंगे। ड्राइवर का क्या मतलब है, ये एक्टिविटी कितने लोगों ने की। मतलब अभी अगर मैं कार्ड इशू करता हूँ, इसके लिए कार्ड इशू करता हूँ, कॉफी मशीन पे मैं एक कार्ड मशीन लगाऊंगा कि वो कार्ड अगर किसी ने यूज किया तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये डिपार्टमेंट से ये बंदे ने कॉफी पी है। ठीक है, अगर मैं वो मशीन लगाता हूँ तो मैंने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट में, मतलब अगर ये डिपार्टमेंट ए है, बी है, सी है, ठीक है, तो यहाँ से कितनी बार कार्ड मशीन यूज हुआ, मतलब कार्ड कितनी बार यूज हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड यूज्ड। ठीक है, तो कार्ड यूज यहाँ पे 2 बार यूज हुआ, यहाँ पे 1200 बार यूज हुआ, और यहाँ पे 13 बार यूज हुआ। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला है, एक अलग ड्राइवर निकाला है कि उससे हमारा ट्रैक रहे कि ये मशीन का जो खर्चा है 15,000 किसको चार्ज करना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका टोटल लूंगा, कितना आता है टोटल इसका? वन टू वन फाइव आता है क्या? सर आवाज कम आ रहा। 1215 आता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने जो रेट निकालेंगे,
वो रेट हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो ओवरहेड हमने चार्ज कर दिया। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉफी मशीन यूज करना, ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आप सीधा लेबर आवर्स के बेसिस पे कॉफी 1234 मशीन का कॉस्ट स्प्रेड कर रहे हो, you are allocating the cost on basis of labor hours, even if some laborers or some people in the department are not using the coffee machine, it is not correct. So what you did was you identified the activity. What is the activity? Using the card for accessing the coffee machine, right or wrong? यस सर, Okay, राइट। तो हम 12.34 आ रहा है सर, कितना, डिवाइड करके 12.34। तो 12 आ रहा है, ठीक। अभी हम लोग ये 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 24। देखो अब पहले अगर मैं 15,000 को ये करता था, अगर यहाँ पे मैं सीधा इसका अगर टोटल ले लेता 180 से, और इसको 15,000 को 180 से डिवाइड करके उसको 50 से मल्टीप्लाई करता था, तो कितना आता था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेशन। इंटू 5 कितना आएगा वो, व- 7,50,000। बोलो कितना आ रहा है, 18। तुम लोग कैलसी लेके नहीं बैठते क्या कॉस्टिंग के लिए? 4167 आता है, कितना आता है, 4167। अभी बताओ मुझे, जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? है ना सर। कहाँ पे 4167 और कहाँ पे 24 रुपए? अब एक बात बताओ, अगर मैंने डिपार्टमेंट बहुत ए को बोल डिफरेंस। दिया कि तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट 24 रुपए है, 4167 है नहीं, तो वो क्या बोलेगा, एबीसी अच्छा है कि ट्रेडिशनल अच्छा है? बताओ। ये भी से अच्छा ये है। जो 4167 हमने निकाला, ये कैसे निकाला, ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से निकाला, राइट? आया ना? यस सर। और ये 24 जो निकाला है किससे निकाला, एबीसी से निकाला। हमने एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया, हमने ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया, और फिर हमने उसका कॉस्ट निकाला, ठीक है। पहला क्या किया, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो, फिर उसका ड्राइवर ढूंढो, और फिर ड्राइवर के बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट करो, ठीक है। वो होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अभी ए डिपार्टमेंट को अगर एबीसी यूटिलाइज हो रहा है, मतलब एबीसी अगर इम्प्लीमेंट हो गया, तो ए डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि हमको अभी जस्टिस मिल गया। बताओ अभी ए को जस्टिस मिला ही कि नहीं? ठीक है, एबीसी आने के बाद डिपार्टमेंट ए का चेहरा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसीलिए हम लोग एबीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे डिपार्टमेंट का चेहरा ऐसा हो, या फिर एक्टिविटी के बेसिस पे हमको निकालना है कि कॉस्ट कितना है। चलो अभी देखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मॉडल दैट आइडेंटिफाइज एक्टिविटी। देखो मैं बार बार ये चिल्ला रहा हूँ कि पहले क्या आइडेंटिफाई करना है। देखो पहले आइडेंटिफाई करो एक्टिविटी क्या है, उसके बाद असाइन द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, ठीक है। हम ये जो 15,000 ही हम लोग असाइन करेंगे किस बेसिस पे, एक्चुअल कंजम्पशन। क्या बोला है, एक्चुअल कंजम्पशन, ठीक है। तो हमको एक और चीज का आइडेंटिफाई करना है, उसका कंजम्पशन कितना है, ठीक है। उसके बाद देन असाइन इनडायरेक्ट कॉस्ट इनटू डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब ये बाद में वाला चीज है। फिर हमको आइडेंटिफाई करना है उसका ड्राइवर कौन है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट। उसका ड्राइवर कौन है, और उसके बाद क्या करना है, असाइन करना है कॉस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमको चार चीजें करनी है, ठीक है।
आइडेंटिफाई करो एक्टिविटी क्या है, आइडेंटिफाई करो कंजम्पशन कितना है, आइडेंटिफाई करो ड्राइवर कितना है, सॉरी आइडेंटिफाई करो ड्राइवर कौन है, और फिर वो जो कॉस्ट है एक्चुअल उसको ये कर दो, एलोकेट कर दो, ठीक है। इन दिस वे एन ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिसाइजली एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या वर्ड यहाँ पे यूज किया है, प्रिसाइजली, बहुत ही एक्यूरेटली अभी हम लोग एक एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने वाले हैं। कोई भी खर्चा हो, स्टेशनरी का खर्चा हो, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो, कूलर का खर्चा हो, क्लीनिंग क्लीनिंग जो लेडी करती है उसका खर्चा हो, हमने अगर वो परफ्यूम लाया है, परफ्यूम या फिर क्या बोलते हैं उसको, एयर फ्रेशनर लाया है, तो उसका भी खर्चा जो भी है हमको प्रिसाइजली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। पहले क्या होता था, स्टेशनरी और पहले क्या होता था, एक डिपार्टमेंट स्टेशनरी खरीद रही है और हम लोग वो कॉस्ट पूरा का पूरा शीट में डाल के सबको चार्ज कर रहे हैं, ऐसा होता था कि नहीं। यस। तो अभी वैसा नहीं होगा, अभी हम लोग एक एक प्रोडक्ट का एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ purposes of identifying and eliminating those which are unprofitable and lowering the prices for which those are overpriced, ठीक है। अभी ये समझने के बाद बी को क्या समझ में आ जाएगा, देखो बी का अगर हम लोग निकालते हैं कॉस्ट कितना है, ठीक है। अभी हम लोग बी का निकालते हैं, चलो बी का निकालो। बी का कितना आएगा, 12 इंटू 12,000 कितना आएगा वो, 14,400 आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 5 की जगह लिख दो 6। कितना कैसा करना है सर? देखो बी को कितना लेबर आवर्स लगता है, 60 लगता है, ठीक है। टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, 180 है। तो अगर मुझे ये 15,000 का कॉस्ट बी को चार्ज करना है तो कैसे करूंगा, 15,000 इंटू 60 डिवाइडेड 90,000 बाय है। 180 कितना आएगा, इंटू 60 5,000 आ रहा है क्या, डिवाइड बाय 180 5,000। अभी वापस देखो जमीन आसमान का फर्क देखो, उसको पहले 5,000 पड़ रहा था जब सब कुछ यही कर रहे थे, तो क्योंकि उसको अकेले को वो खर्चा बेयर करना नहीं पड़ रहा था इसीलिए वो मस्ती कर रहा था। कॉफी मशीन कितना यूज करना चाहिए, 1200 बार यूज करना चाहिए क्या, दिन में 10 बार पी रहे थे वो चाय, मिल रहा है इसीलिए, ठीक बाप, है। अभी मैंने अगर डिफरेंस बहुत एबीसी है। लगा दिया तो वो पकड़े गए कि नहीं, देखो वो पकड़े गए यहाँ। यस यस यस। तो अभी उनको समझ में आ गया कि अरे अपन इतना कर रहे हैं, हमको हमको भी नहीं मालूम था कि हम लोग इतना कर रहे हैं, तो अभी वो इतना करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनका कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा ना, सॉरी कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। यस यस। और अगर कॉस्ट बढ़ गया तो उस पर अगर और प्रॉफिट लगा के सेलिंग प्राइस निकालो तो वो सेलिंग प्राइस पे कोई खरीदेगा ही नहीं, है कि नहीं, कोई खरीदेगा क्या वो सेलिंग प्राइस पे। तो नो। ये अनप्रॉफिटेबल है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम प्राइस भी हमारी लो रख सकते हैं अगर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोले। ये मैं बोल रहा हूँ क्या, ये यहाँ पे लिखा है कि पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग, देखो मैं अब इसको अलग कलर से सर्कल करता हूँ, आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग अनप्रॉफिटेबल एंड लोअरिंग द प्राइसेस जो ओवर lowering प्राइस the हो चुके हैं, prices of which are overpriced। ठीक है। तो अभी तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं, एबी से आ गया तो जो तुम्हारी यस सर। अनप्रॉफिटेबल बाइफर्केशन एक्टिविटीज हो है रहा है। तुमको दिख रही है, वो हम लोग कम करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, जो पहले हमारे सिस्टम में नहीं थे।
आप अगर सोचो तो आप ऐसा इंडस्ट्री का कोने कोने में आप एबीसी अगर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम अच्छे से क्लीन हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी, Yes. प्राइसेस लो हो जाएंगे। ठीक है, ये जो फालतू का खर्चा कर रहे हैं ना हमारे लोग, ये देखो ये, इस पे भी कंट्रोल आ जाएगा कि अगर कोई पर्सन ये मशीन जो इन्होंने 1200 बार यूज की है, इस पे ही अगर पांच बार से ज्यादा अगर यूज करेगा, उसको 500 रुपीज फाइन लगा देंगे हम लोग, है कि नहीं? तो उससे क्या हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी। 9400 का डिफरेंस है। यस, तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो अभी थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना जरूरी नहीं है एक्सप्लेन करना, जाने दो। समझ में आया क्या सबको? देखता हूँ पहले कौन कौन लोग हैं। यस सर, यस सर। बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन क्या मालूम किसको समझ में आया। अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, आप नाम और ये, और समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट वो भी लिखो, सर अंडरस्टूड लिखो चैट बॉक्स में। अगर नहीं समझ में आया तो वापस ओके सर। रिपीट करता हूँ, क्योंकि हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है ज्यादा। इसके बाद हम लोग अभी फास्ट फास्ट देखेंगे, क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स है इसके बाद। नंतर करू, अजून आहे टाइम तिचा, उद्या त्याला. ओके, काय करू आता? ऑडियो इज हॅलो, turned हॅलो. off. बस इथे. Yes, Bhagyashree, are you understanding? Or do you want me to repeat Yes, it? sir. Okay, okay, fine. So let's continue now. Only 2 have responded out of, I don't know, out of 8 people, only 2 have responded. So people are now still joining. Okay, so we have seen what is the meaning. Once again, I will repeat. ABC is an alternative to traditional way. It identifies the cost pools, activity centers based on number of events that are taking place in the process of प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है इसमें कि अल्टरनेटिव है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई करता है कॉस्ट को, आइडेंटिफाई करता है एक्टिविटी सेंटर को, ठीक है, और फिर हम आइडेंटिफाई करता है ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर को ये नंबर ऑफ इवेंट्स जो बोल रहा है ना, ये यही ड्राइवर है। ठीक है, जैसे कॉफी मशीन कितनी बार यूज नंबर ऑफ हुई, इवेंट। ये क्या है? ये ड्राइवर है। नंबर ऑफ टाइम्स मशीन इज यूज, दैट इज अ ड्राइवर। ठीक है, ओके तो ये सब चीजें बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इट इज अ कॉस्टिंग मॉडल दैट आइडेंटिफाइज एक्टिविटीज। ठीक है, ये हम ऑलरेडी दिख चुके हैं, आइडेंटिफाई करता है एक्टिविटी को, assigns the cost of each activity to all products and services according to actual consumption. okay, एक ही रेट नहीं यूज करता, एक्चुअली जितना कंज्यूम हुआ है वही चार्ज कर रहे हैं, बाकी और कुछ फालतू चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद प्रिसाइजली एस्टिमेट द कॉस्ट, identify and eliminate unprofitable activities and लोअरिंग प्राइस lowering the prices। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइस। प्रिसाइजली हम लोग एस्टिमेट कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट कर रहे हैं किस चीज को? जो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है उसको। ठीक है, तो ये पॉइंट्स उन्होंने बताए हमको मीनिंग में। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, मैं तुम्हारे लिए 2-2 बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि अगर छूट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड रिसोर्सेज फॉर एक्टिविटीज। ठीक है, इजी था, कुछ समझने के लिए इतना ही नहीं है। फिर अकाउंटिंग सिस्टम दैट एट्रीब्यूट्स कॉस्ट टू एक्टिविटीज, सपोर्ट एक्यूरेट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये वापस क्या बोल रहा है? एक्यूरेसी आते हैं। क्या बोल रहा है? एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहा है। ये पहला डेफिनेशन किस बारे में बात कर रहा है? ये सिर्फ अकाउंटिंग मेथड की बात कर रहे हैं, और कुछ इसको बोलना नहीं था।
लेकिन यहाँ पे ये एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द मेथोडोलॉजी फॉर अकाउंटिंग ऑल्सो मेजर्स द कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, ये परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अलग क्या है, ये सिर्फ अकाउंटिंग मेथड की बात कर रहा है, डेफिनेशन नंबर 1, और डेफिनेशन नंबर 2 एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको उससे एक्यूरेसी समझ में आता है कि सॉरी एक्यूरेसी रहती है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में, और हमको परफॉर्मेंस भी समझ में आता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं, लेकिन मैं अभी ट्राई करता हूँ ज्यादा कवर करने की। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। अभी मैं ये देखो यहाँ पे जो दिया है, पीपल, मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, मशीन्स, मनी, फैसिलिटीज, ये सब क्या है? बोलो, ये खर्चा है क्या? ये ड्राइवर है? नहीं नहीं, खर्चा है। खर्चा। पीपल खर्चा होता है? ड्राइवर है। नहीं नहीं, ये क्या है? ड्राइवर है। डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, किसको कितना मटेरियल लगता है, को कितना कंज्यूमेबल लगता है, कितने नंबर ऑफ मशीन्स है, कितना पैसा लगता है, क्या क्या फैसिलिटीज है, ठीक है। ये सब लोग हाँ। क्या है? ड्राइवर्स। ड्राइवर। के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है प्रोसेसेस है, तो मैं पूछूंगा नहीं ये क्या है। ये भी क्या है? प्रोडक्ट, सर्विसेज, कस्टमर्स, ठीक है, ये छोड़ दो, ये इसका कुछ रेलेवेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो आपको आपको मैं क्या बताना चाहता था कि ये जो पीपल है, ये जो यहाँ पे दिया है, ये क्या है? ड्राइवर से, ये लोग क्या है? ये ड्राइवर है। ड्राइवर। तो पहले रिसोर्स को समझो, रिसोर्स क्या है, फिर एक्टिविटी समझो, फिर उसके ड्राइवर निकालो, ठीक है। ये तुमको एग्जाम में निकालना नहीं है, ये डायग्राम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे ही दे दिया है उन्होंने, कुछ यूजफुलनेस नहीं है इसका, ठीक है। तो तुमको बता दिया है मैंने ऑलरेडी क्या है, ये पढ़ना नहीं, ठीक है। अभी सीधा बेनिफिट्स देखेंगे, अभी फटाफट बोलो, हेल्पफुल टू एम्प्लॉइज है कि नहीं? It enables them to analyze the cost and identify activities that add value and those do not add value. हमने ऑलरेडी क्या दिख चुका है कि ये आइडेंटिफाई करता है एंड एलिमिनेट करता है। क्या एलिमिनेट करता है? अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी, हाँ या ना? बोलो हाँ। यस सर। और यस सर। ठीक है, इतना ही कर, ठीक है, यही पॉइंट इन्होंने यहाँ पे वापस रिपीट किया है। उसके बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। अभी हमने पहले निकाला कि 14,400 आ रहा था बी का कॉस्ट एबीसी से, लेकिन उसको हम चार्ज कितना कर रहे थे? 5,000। तो पहले 9,400 करेंगे, मतलब कम हो जाएगा। उसके बाद वो 5,000 भी ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसको फाइन लगा देंगे, ताकि एक दिन ऐसा है कि कोई कॉफी मशीन यूज ही नहीं कर रहा, या फिर बहुत ही लिमिटेड उसका यूज हो रहा है, ठीक है। सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो, इसीलिए हम लोग मेजर्स लेंगे ताकि फाइन। रिड्यूस हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। कौन सी एक्टिविटीज? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। इससे क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी। लोग जो कॉफी पीने में टाइम वेस्ट कर रहे थे, उससे अच्छा एक बार कॉफी पियेंगे, 5 घंटा काम करेंगे, ठीक है। हमको इतना भी कम नहीं करना है कि वो पागल हो जाए, ठीक है, रीजनेबल रहना है, क्योंकि हम लोग कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। एंड इट शुड बी हेल्पफुल टू एंटरप्राइजेस, ठीक है। Activity based costing has helped enterprises in answering the market need for better quality products at competitive prices. अभी आप लोग आईफोन खरीदते हो, आईफोन का फंक्शनलिटी देख के तुमको लगता है कि उसका 1.5 लाख होना चाहिए प्राइस? नो सर। नो सर। उसका फंक्शनलिटी दूसरे मोबाइल से इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, बस उन्होंने ब्रांडिंग और मार्केटिंग उतना अच्छा किया है, इसीलिए वो इतना हाई चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनको बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करो, पूरा सब कुछ बाहर निकल के आ जाएगा कि ये क्या क्या फालतू खर्चा हमको चार्ज करे, लेकिन वो करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंपनीज है, इनको आंसर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? आंसर करना पड़ता है कि आप लोग इतना क्यों चार्ज कर रहे हो। अभी तक आईफोन क्या रीजन देता है? कि हम लोग बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके अलावा कुछ और वो देते नहीं रीजन, ठीक है। तो लेकिन वो आंसर तो दे रहे, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये हेल्प करती है एंटरप्राइज को। जब कस्टमर पूछता है कि बाबा इतना ज्यादा पैसा किस चीज का ले रहे हो तुम, क्या चार्ज कर रहे हो तुम, तो आप बता सकते हो कि हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया है,
हमारे इस पे इतनी एक्टिविटी होती है, ये ड्राइवर्स है, इसके हिसाब से इतना कॉस्ट आता है, ठीक है। तो टाइम आप एनालिसिस करके बता सकते हो। तो ये इट हेल्प्स यू इन आंसरिंग द मार्केट नीड। उसके बाद उससे टॉप मैनेजमेंट भी डिसीजन लेता है, ये आपकी इफिशियंसी भी बढ़ाता है, कॉस्ट भी कम करता है, वैल्यू भी देता है कस्टमर को। आप बैलेंस स्कोर कार्ड भी रख सकते हो। बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब मालूम है क्या होता है? ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये इन्होंने ऐसी यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया है, कुछ मीनिंग उसका बताया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड। ये $1 बिलियन कंसेप्ट है। कितने डॉलर का? $1 बिलियन कंसेप्ट है, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे। दिस हैज enabled the enterprises to model the impact of cost reduction and confirm the savings, ठीक है। हाँ, अगर अभी देखा हमने कि ए डिपार्टमेंट जो है वो बहुत कम यूज कर रहा है, कम मतलब ऐसा नेग्लिजिबल यूज कर रहा है, तो हमको उसको अवार्ड देना चाहिए कि नहीं, कि आप पैसा बचा रहे हो कंपनी का, आप बहुत पैसा सेव कर रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, उसको थोड़ा कुछ तो देना चाहिए ना, अवार्ड वगैरह। अच्छा, यस। तो वो कैसे पता चलेगा? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे पता चलेगा कि ये पर्सन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये बिल्कुल फालतू खर्चा नहीं करता, बहुत पंक्चुअल है, बहुत अच्छे से काम करता है। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ, ठीक है। तो एंड इट हैज अ बिल्ट इन कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज, कंटिन्यूअसली ऐड वैल्यूज टू स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली बात तो ये आपको आंसर करने में मदद करता है कि आप इतना कॉस्ट किस चीज का ले रहे हो। उसके बाद आपको आपने जो भी सेविंग्स की है वो भी आपको पता चलती है। फिर कॉस्ट का भी आप एनालिसिस कर सकते हो, और इससे आप कंटिन्यूअसली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं आपको, ठीक है। पहला क्या है? आंसर। दूसरा क्या है? सेविंग्स। तीसरा है कॉस्ट। और चौथा क्या है? एडवांटेजेस। ऐड करता है वैल्यू कंटिन्यूस, ठीक है। मैं एक ही जगह वी लिख देता हूँ ताकि ये ना, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर्स याद करने हैं ताकि आप करेक्ट लेंथ में आंसर्स लिखो और फिर अच्छे मार्क्स मिले आपको, ठीक है। कॉस्टिंग में आपको एटलीस्ट आउट ऑफ तो एम करना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट है और करने जैसा। उसके बाद अदर बेनिफिट्स क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बारे में एक डेफिनेशन भी देखी है हमने। उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग, कौन कितना यूज कर रहा है, इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वापस वही बोल दिया उन्होंने। हम लोग यूनिट का कॉस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं रादर देन टोटल कॉस्ट, ठीक है। हम लोग यूनिट कॉस्ट की वजह हम क्या बोल सकते हैं कि हम लोग ड्राइवर निकाल के एक्चुअल कंजम्पशन क्या है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। वी आर एलोकेटिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल कंजम्पशन। उसके बाद विजिबल वेस्ट, नॉन वैल्यू एडेड जो है वो भी समझ में आती है, परफॉर्मेंस भी समझ में आता है। उसके बाद हम लोग प्रोसेस का कॉस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस का कॉस्टिंग कर सकते हैं। अभी सोचो, मैं अगर कॉफी मशीन पे एक कार्ड का ये लगा रहा हूँ, कार्ड डिटेक्टर, जो मुझे बताएगा कि वो मशीन लगाने के बाद कितना कॉफी कंजम्पशन कम हुआ है, ठीक है। तो मैं वो मशीन तभी खरीदूंगा अगर मेरे कंजम्पशन कम हो रहा है, नहीं तो मैं वो मशीन नहीं खरीदूंगा। इट मिरर्स वे वर्क इज डन एंड इट फैसिलिटेट्स बेंचमार्किंग, ठीक है। ये बेंचमार्किंग भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये लोगों ने पक्का कहीं से तो थियरी कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये भी $1 बिलियन कंसेप्ट सर, बट है। इसको समझाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ रहे हैं, तो उसको हमको 45 मिनट्स लगे, क्योंकि बहुत छोटा कंसेप्ट है। ये जो 2 कंसेप्ट है ना, बैलेंस स्कोर कार्ड, बेंचमार्क, ओके, बैलेंस ये 2 आवर्स के कंसेप्ट है, इतने बड़े कंसेप्ट है ये। लेकिन जाने दो, हमको अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग एमबीए के स्टूडेंट नहीं है, जाने दो, ठीक है। चलो अभी 1 ही मिनट बचा है, कुछ क्वेरीज है क्या? नो सर, कैसा था आज समझ का गया। लेक्चर? बोलो। अभी 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।